Welcome children in Resources and Development Part 2. Scientific perspective of the environment. For the past 70 years, environmental scientists have been raising questions about the degradations of the environment for a scientific perspective. For example, in the decade of 1950s, many people noticed that they seldom heard the chirping of birds or the buzzing of bees, an insect in many parts of America. Subsequent studies trace the drastic fall in their populations to the extensive and persistent use of chemical pesticides. हम देखेंगे कि पिछले 50 वर्षों में पर्यावरण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस विचार पर प्रश्न उठाया। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में अमेरिका के कई क्षेत्र के लोगों ने पाया कि उनके इलाकों में पक्षियों की चहचहाट जो है वो सुनाई नहीं दे रही और न ही वे कीट पतंगों व मधुमक्खियों की जो भुनभुनाहट है वो सुन पा रहे हैं। तो अध्ययन से पता चला कि वे लगातार रासायनिक दवाओं की छिड़काव के कारण जो है वो खत्म हो गए। Rachel Carson's 1962 book Silent Spring starkly highlighted the distressing effect of the indiscriminate pesticides used on the environment, with humans too falling a prey to their impact. Her research showed how humans' activities damage the environment and affect humans' lives as well. For example, the DDT used to eradicate mosquito finds its way into fish in the lakes and rivers. 1962 में रेचल कार्सन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में लिखा है कि पक्षियों व कीट पतंगों की चुप्पी के पीछे कीटनाशकों का भयावह प्रभाव है जो मनुष्य पर भी पड़ रहा है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले DDT का जहर झीलों में रहने वाली मछलियों के शरीर में पहुंच जाता है। Even a small amount of the toxic chemical can contaminate and kill the fish. When humans and birds consume the contaminated fish, the trace chemical residues are still enough to cause them harm. Following the publication of Silent Spring, scientists around the world began conducting research on how industrial progress is affecting the environment. जहर की इस छोटी सी मात्रा से कुछ मछलियां मर जाती है और कुछ जिंदा रह जाती है, किंतु जब उन्हीं मछलियों को इंसान और पक्षी खाते हैं तो उनके भीतर घुली रसायन की मात्रा उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए प्राप्त होती है। रैचल की खोज इस बात से स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार मनुष्य की क्रियाओं का विपरीत प्रभाव स्वयं मनुष्य और प्रकृति पर पड़ता है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद विश्व के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक विकास का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध करने की शुरुआत की। So environmental scientist says that our natural wealth is the vast and complex web in which damage to a small segment can impact the whole system. Every part of nature, whether non-living like water, air, rocks or soils, or living like insect, bird, animal or crop, is interconnected. An activity in one part can affect the others. If we use the pesticides to control insect, they not only kill the insect but also enter our body via the food gain we eat or the bodies of domestic animals via the hay they consume. These toxic chemicals accumulated in our bodies to cause long-term diseases such as cancer. If we release toxic industrial influence into river and streams, the fish and other living organisms in the rivers drinking the water and humans who eat the fish are affected. In the same way, air pollutions, deforestation and mining activities affect the environment. All this happens because all living and non-living elements on the earth are intertwined. पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक संपदा का एक विशाल तानाबाना है जिसके किसी छोटे से अंश को हानि पहुंचाने से पूरे तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति का हर हिस्सा, चाहे वह निर्जीव जल, हवा, चट्टान या मिट्टी हो, या कीट पतंग, पक्षी, मानव या फसल जैसे सजीव हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक पर हो रही क्रिया से सभी देर सवेर प्रभावित होंगे। अगर हम कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं
तो वह न केवल कीड़ों को मारते हैं मगर अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं और उन फसलों के भूसे खाने वाले जानवरों के शरीर में प्रवेश करते हैं। हमारे शरीर में वे धीरे धीरे संचित होते हैं और कैंसर जैसे लंबे समय की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अगर हम रासायनिक औद्योगिक अपशिष्टों को नदी नाला में प्रवाहित करते हैं तो उस पानी में रहने वाली मछलियां व अन्य जीव या उस पानी को पीने वाले जानवर प्रभावित होते हैं और उन्हें खाने वाले मानव प्रभावित होते हैं। इसी तरह हम हवा में प्रदूषण बढ़ने से या जंगलों के काटने से या खदानों से पर्यावरण प्रभावित होते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती के हर तत्व आपस में गुथे हुए हैं। Now we will see about the waste. They are the unutilized and discarded component of the productions. And example include the baggage that is thrown away after extracting juice from sugarcane. The wrapper we throw away after eating the package of biscuit. The usable portions of the raw material used in factories, or the chemical laden water and smoke release after productions. Many waste material can find other uses. For example, we can burn bagasse as fuel or use it to manufacture paper. We can also remove harmful chemical from contaminated water and smoke with special equipment and reuse the water. Large-scale industries productions has badly affected the complex environment way. The Earth's natural resources are not inexhaustible. Using them indiscriminately will deplete them permanently. Our natural resources will be lost for good at our current rate of utilizing these assets. Many rivers are turning into open drain. Land and water are prone to pollutions. The impact in coming years will be grievous. In this chapter, we shall reflect on these problems by trying to understand the natures of our resources. उत्पादन या उपभोग के समय जिन तत्वों को अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है, उदाहरण के लिए गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने की खोई को फेंक देते हैं, या फिर जब हम बिस्किट खरीद कर खाते हैं तो प्लास्टिक रैपर को बेकार मानकर फेंक देते हैं। कारखानों में कच्चे माल का अनुपयोगी हिस्सा या उत्पादन में उपयोग किए हुए रसायन युक्त पानी या धुआं जिन्हें बाहर निकाला जाता है, बहुत से अपशिष्टों का अन्य उपयोग किया जा सकता है, जैसे गन्ने की खोई से कागज बनाना या उसे ईंधन के रूप में उपयोग करना। इसी प्रकार विशेष संयंत्रों से गंदे पानी या धुएं से हानिकारक रसायनों को अलग किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया ने इस ताने बाने को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा असीम नहीं है, इनके अंधाधुंध उपयोग से यह संपदा हमेशा के लिए खत्म होती जाए। आज हम जिस मात्रा और तरीकों से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वह इस संपदा को नष्ट कर देगी। नदियां नालों में बदल रही है, भूमि और वायु प्रदूषित हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम इस पाठ में प्राकृतिक संसाधन को समझेंगे और इन natural resources are resources in whose creation humans do not play a role. Humans only extract resources from their natural setting. For example, the wood we collect from the forest is a natural resource, but the cotton we grow in fields is not. Similarly, the iron ore we mine is a natural resource, but the steel we make from it is not. प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में उन्हीं चीजों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है। वह केवल उन्हें अपने प्राकृतिक संदर्भ से अलग करता है। उदाहरण के लिए, जंगल से काट कर लाए गए लकड़ी को हम प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं, मगर कपास जिसे मानव उगाता है उसे नहीं। इस तरह से हम धरती के भीतर से निकाले गए लौह अयस्क को प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, मगर उसी अयस्क से मानव द्वारा निर्मित इस्पात। Natural resources are classified in different ways. Resources derived from living things such as wood, fish, etc. are organic resources. Coal and minerals oil also belongs to the category because they are fossilized living beings. Non-living physical resources such as land, air, water, metallic minerals, etc. belongs to the category of inorganic resources. We can also classify resources according
to whether they are replenished in nature or not. Resources that replenish naturally are renewable resources. Resources that are available in finite quantities and do not replenish easily are non-renewable resources. प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। जो संसाधन जीवों पर आधारित है उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, मछली आदि। कोयला और खनिज तेल को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि वे मृत जीवों से बनते हैं। दूसरी ओर जो निर्जीव भौतिक संसाधन है जैसे भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज आदि को अजैविक संसाधन कहते हैं। संसाधनों को एक और आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यह देखकर कि ये संसाधन प्रकृति में लगातार बनते जाते हैं या नहीं। जो संसाधन प्राकृतिक तौर पर बनते रहते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है और आसानी से नहीं बनते उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। Renewable resources. They replenish by nature process. They are always present on earth. For example, air, water, forest, animal, etc. If humans do not interfere in their renewal process and utilize them carefully, they will be constantly available. However, there is a limit to their utilization. Exceeding this limit or spoiling the resource leads to their degradations and affect their renewal. For example, water is always available on Earth. Water evaporates from the oceans and condenses as rainfall. Some of this rainfall seeps into the earth to replenish the groundwater. The rest flows into rivers and streams to reach the oceans. This endless cycle renews water. However, obstacles in the process disrupts the water cycle. For example, depletions of forest cover results in less water seeping into the earth. This affects the recharge of groundwater. The depletions of groundwater causes dug well and bore well. नवीकरणीय संसाधन वे है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीकृत होते रहते हैं। ये पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान है, जैसे वायु, जल, वन, पशु इत्यादि। यदि मनुष्य इनकी नवीकरणीय की प्रक्रिया में बाधा न डाले और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करें तो वे सतत उपलब्ध रहेंगे। इनके उपयोग की एक सीमा है। इस सीमा के बाद अथवा गलत उपयोग से संसाधनों का अवनयन होता है, मतलब बिगाड़ होता है, और उनके नवीकरणीय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जल पृथ्वी पर सतत विद्यमान है। सागरों से जल वाष्पीकृत होकर जल वाष्प बनता है, जो संघनित होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होती है। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में रिस कर भूजल बनता है और शेष भाग नदियों से बहकर पुनः सागर में चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जल नवीकृत होते रहते हैं। हम इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कई अवरोध पैदा कर देते हैं या गलत उपयोग करके उन्हें प्रभावित करते हैं। इससे नवीकरणीय प्रक्रिया प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए यदि पृथ्वी पर वन कम हो जाए, पेड़ पौधे का आवरण कम हो, तो वर्षा के जल को भूमि में रिसने का मौका नहीं मिलेगा। भूजल का स्तर प्रभावित होता है। धीरे धीरे कुएं और नलकूप सूख। नदियों में गंदा पानी बहाया जाता है। यदि यह कम मात्रा में हो तो बहता हुआ जल और उसमें मौजूद जीव इसे साफ करने की क्षमता रखते हैं, परंतु आज अत्यधिक मात्रा में कचरा डाला जाता है और बांध व सिंचाई के कारण नदियों में पानी का बहाव भी कम होता जा रहा है। इस कारण नदियां अपने आप को साफ नहीं कराती। देखते देखते नदियां गंदे नालों में बदल जाती है। यदि हमें इस प्रदूषण को रोकना है तो हमें कचरे का अन्य उपयोग करना पड़ेगा, जैसे खाद बनाने के लिए या पानी को साफ करके बगीचों में उपयोग करने के लिए इत्यादि। इसके साथ साथ उद्योगों द्वारा निकाले जाने वाले कचरे को पुनः उपयोग करना होगा। नदी में पानी की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि वे जीवित रह पाए और उनकी प्राकृतिक नवीकरण की प्रक्रिया जो है वो चलती रहे। अतः यह आवश्यक है कि इन संसाधनों का प्रयोग करके इसके नवीकरण के चक्र को ध्यान में रख कर करें तो बेहतर होगा। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हम जितने संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वे उतने नवीकृत हो पाए। यदि इस प्रकार
किसी क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन या उपयोग उसके रिचार्ज से ज्यादा है तो भूमिगत जल का स्तर non-renewable resources. These resources such as iron ore, coal, mineral oil, etc. are available in limited quantities. The natural stocks depletes the more we utilize them because they do not renew themselves. For example, metallic ore deposit depletes after mining and extracting the metal from them. We then have to look for new ore deposits. A day will come when we exhaust all available deposits. Even today, many mines have shut down after exhausting their stocks. One such example is the Dalli Rajra iron ore mines in छत्तीसगढ़. अनवीकरणीय संसाधन के बारे में. अनवीकरणीय संसाधन वे है जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है. उनका उपयोग करने के बाद उनका भंडार कम हो जाता है. वे अपने आप नवीकृत नहीं होते, जैसे लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल इत्यादि. उदाहरण के लिए धात्विक खनिजों से एक बार धातु बना दी जाए तो खनिज कम हो जाएंगे. यदि हमें नए खनिज भंडार नहीं मिले तो ये खत्म हो जाएंगे. एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे भंडार समाप्त हो जाएंगे. आज भी कई खदान बंद हो चुके हैं क्योंकि उन खदानों के खनिज समाप्त हो चुके, जैसे छत्तीसगढ़ का दल्ली राजा का लौह अयस्क खदान. India depends on crude oil imports because the country does not have adequate proven reserve. As the global stock depletes, price of oil will escalate. India and its citizens will have to bear the burden of higher price. The sensible thing to do is to reduce consumptions, use oil only when necessary, and look for alternative energy sources. For example, we could increase productions of solar and wind energy to reduce our dependence on mineral oil. The developed nations are not concerned about the needs of developing nations, but want to control global oil reserve to protect their own interests and ensure they do not face any shortage. The United States of America does not have adequate oil reserve to meet its domestic consumption, so it used its economic and military might to gain control of the oil reserve of other countries. This policy has led to war that have caused large-scale destructions and brought misery to millions of people. भारत खनिज तेल के आयात पर निर्भर है क्योंकि यहाँ तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है. जैसे जैसे भंडार कम होंगे और इसके भाव बढ़ेंगे तो भारत पर इसका विपरीत असर पड़ेगा. यदि यहाँ तेल की कीमतें बढ़ती है तो प्रत्येक व्यक्ति पर भार बढ़ेगा. अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम इन अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कम करें, यथासंभव उन्हें जरूरत पड़ने पर ही उपयोग करें. उदाहरण के लिए खनिज तेल आधारित ऊर्जा की जगह हम सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ा सकते हैं. दुनिया के बड़े देश दूसरे देशों की चिंता नहीं करते. वे यही सोचते हैं कि इन संसाधनों के स्रोतों पर कब्जा जमा रहे ताकि उन्हें संसाधनों की कमी न हो. संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास तेल भंडार तो कम है, लेकिन वे सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर दूसरे देशों के संसाधन भंडार पर नियंत्रण करना चाहते हैं. इस नीति का परिणाम युद्ध और लोगों की तबाही के रूप में सामने आया.